Hi, good evening. You're watching the Election Premier League with me, Kritsween Walia. We start up with Telangana. With 3 days to go for polls, the Telangana election battle is only intensifying with each passing minute. During campaigning in Telangana, Prime Minister earlier today hit out at Chief Minister KCR for calling him farmhouse CM. The Prime Minister said that Telangana does not deserve a Chief Minister who stays in a farmhouse and never visits the Secretariat, saying soon the farmers will send KCR permanently to his farmhouse. The Prime Minister alleged that while the centre had built 2.5 lakh houses for the poor in Telangana, the state government did not allot those houses to the poor. He said that while the Chief Minister himself lives in a farmhouse, he deprives the poor of houses built by the centre. The PM also called KCR an enemy of the state and said just like the BRS's defeat in Hazurabad by poll, the farmhouse chief minister will soon be ousted from power from the state. Listen in. यहाँ तेलंगाना में भी केंद्र सरकार ने बहुत प्रयास करके करीब 2.5 लाख घरों का निर्माण पूरा किया है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, इनमें से हजारों घरों को तेलंगाना सरकार गरीबों को देती नहीं है। गरीबों की दुश्मन केसीआर सरकार इन घरों पर कब्जा करके बैठ गई है। करीमनगर ने हुजूराबाद उपचुनाव में फार्म हाउस सीएम केसीआर को सत्ता से बाहर करने का ट्रेलर दिखा दिया था। मैं जहां जहां गया हूं, तेलंगाना एक ही बात बोल रहा है, हर कोई कह रहा है तेलंगाना में पहली बार आ रही है बीजेपी सरकार। The Congress too hit out at the Telangana government with Priyanka Gandhi Vadra accusing the Chief Minister of running the government from his farmhouse while the poor continue to suffer in the state. Other Congress party leaders also said that it was time up for CM KCR. तेलंगाना के बड़े-बड़े नेता अपने महलों में, अपने फार्म हाउस में बैठकर सरकारें चला रहे हैं। उनसे ही सीखा आपके विधायक ने, जो आपके बीच आते नहीं हैं और जब जब आपकी समस्याएं होती हैं तो अपना मुंह नहीं खोलते। आपकी यहाँ पे भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जो आरआरआर का प्रोजेक्ट है उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। 10 सालों से बीआरएस की सरकार चल रही है तेलंगाना में। इनके सारे नेता बड़े बड़े महलों में बैठे हैं। इनकी जितनी भी नीतियां हैं सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं। ये छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वालों, मिडिल क्लास, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों के लिए कुछ नहीं है। BRS is the most corrupt government in the country. Everybody knows this. The entire family is looting the state. But unfortunately, I have come to know RSS and BJP people, now they are supporting BRS in Telangana just to defeat Congress party. Basically, BJP is against Congress. They think if BRS comes to power, it is all right, but Congress should not come. But people of the Telangana, they are with us. The BJP continues to sharpen its attack after the Prime Minister's dig at Chief Minister KCR during the Telangana campaign. Listen in. First of all, KCR has made an appeal for 70 years. This honor is enough for me. So, I just wanted to work for the people of Telangana and for the benefit of the people of Telangana. How do you say this? उनको 10 साल मौका दिया है तेलंगाना जनता को काम करने के लिए। अब 70 इयर्स हो गए उनका राजनीति में, बता रहे थे उनका एज। मैं पूछना चाहता हूं, लास्ट 10 इयर्स आप क्या किया है? लास्ट 10 इयर्स आपके परिवार के लिए काम किया है? लास्ट 10 इयर्स आपके फैमिली के लिए काम किया है? लास्ट 10 इयर्स पैसे कमाने के लिए काम किया है? लास्ट 10 इयर्स फैमिली रूल तेलंगाना के जनता को थोपने के लिए प्रयास किया है? लास्ट 10 ईयर मजलिस पार्टी के मिलकर एक संतुष्टिकरण राज्य चलाने के लिए प्रयास किया है? लास्ट 10 ईयर तेलंगाना जनता को धोखा दिया है? लास्ट 10 इयर्स तेलंगाना के लिए जो लड़े हैं उनका परिवार को जो छोड़ दिया है?
इसलिए आप 10 साल आपके पार्टी के लिए, आपके परिवार के लिए काम किया है, फिर एक बात ये तो जनता के लिए काम करेंगे। तेलंगाना जनता तैयार नहीं है, आपको भी समझ में आया, आप अभी कोई काम करने का जरूरत नहीं है। आप सीएम ऑफिशियल हाउस प्रगति भवन छोड़कर आपका खुद का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पार्टी का फार्म हाउस है, उधर जाके आप काम करिए। सर रईतु बंधु का आप एपिसोड देख रहे हैं पूरा। अभी ईसीआई ने पहले तो परमिशन दिया था सैटरडे को, फिर अभी ने विड्रॉ कर लिया है। तो अभी बीआरएस कह रहा है कि ये कांग्रेस एंटी पार्टी है और ये उनका क्रूएल इंटेंशंस पता चल रहा है। और कांग्रेस कह रही है कि बीआरएस मतलब एक तो पब्लिक को फूल करना चाहती है, इसीलिए ये तो पहले दे रहे हैं, हम बाद में 5,000 बढ़ के ही देंगे। ये बहुत दोनों ड्रामा करते हैं। कांग्रेस पार्टी हो, बीआरएस पार्टी हो, दोनों एक ही है। दोनों, क्योंकि केसीआर मूल कांग्रेस पार्टी का है। केसीआर कांग्रेस सरकार में दिल्ली में मंत्री थे, केंद्र सरकार में, और कांग्रेस का सरकार तेलंगाना में केसीआर का परिवार भी मंत्री थे, बीआरएस टीआरएस आने के बाद भी। अभी राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन किया है, उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन किया है। दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों का डीएनए एक ही है, दोनों का जो सोच एक ही है, दोनों मिलके ही काम करते हैं। इसलिए आज रईतु बंधु के नाम पर भी दोनों मिलके ड्रामा कर रहे, किसानों को जो गलत पैमान लाने के लिए प्रयास करे। ये देने के लिए वादा किया, रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी वादा प्रयास किया है, दोनों एक ही है। ये सब ड्रामा है। योगी आदित्यनाथ ने जो है आपके साथ रोड शो किया था, किस तरह का रहा? नो डाउट पूरा भगवामय हो गया था, लेकिन आपका मोरल कितना हाई? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ कल। योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो हर चुनाव में मुझे आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और कल की जो यात्रा थी, हजारों की संख्या में भगवाधारियों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और योगी आदित्यनाथ जी का मान सम्मान एवं भव्य रूप से उनका स्वागत किया और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। जैसे कल की जो संख्या थी, यानी सिर्फ रामनवमी के शुभ अवसर पर ही एक साल में एक बार उतनी संख्या देखने को मिलती थी, लेकिन कल जिस प्रकार से जो संख्या, जो राम भक्तों का जो हुजूम देखने को मिला है, लोग कह रहे कि दूसरी रामनवमी शोभा यात्रा हमने देख ली है। सर, लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता तमाम जो रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि केसीआर जो है वो फार्म हाउस में ही बैठे रहते हैं, कभी सचिवालय नहीं आए। बड़ा सचिवालय बनाया भी गया, लेकिन बावजूद उसके तांत्रिकों की बात मानकर वो बिल्कुल भी सचिवालय नहीं आते। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भी दुर्भाग्य है तेलंगाना का, जो हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो ना फार्म हाउस से निकलते हैं और ना ही सचिवालय में आते हैं। वैसे तो जब आंध्र प्रदेश था, वो समय पर चंद्रबाबू नायडू जी हो या वाईएस राजशेखर रेड्डी जी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, पब्लिक को मिलते थे, पब्लिक को इजीली अवेलेबल बोल रखते थे। यानी हर संडे हो या कोई भी एक दिन पब्लिक यानी प्रजा मिलते, खुद के विधायक से नहीं मिलते। ऑपोजिशन से तो बहुत दूर की बात है, खुद के लोगों को भी ये लोग टाइम नहीं देते। सर, भाग्यनगर नाम जो है बदलने की बात हमने देखा था, जीएचएमसी चुनाव में भी काफी जोरों पर थी, जिसका फायदा शायद बीजेपी को 4 से 48 तक हुआ था। इस बार भाग्यनगर का नाम बदलने का मुद्दा फिर एक बार जो है सामने आ गया है, क्या कहेंगे? देखिए, भाग्यनगर का नाम बदलने का संकल्प ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, तेलंगाना के हर वो हिंदू का है। भाग्य लक्ष्मी माता से बहुत ही लगाव है, और जब निजाम के राज्य से पहले हैदराबाद को भाग्यनगर ही कहा जाता था। निजाम का राज आया, उन्होंने कईयों ऐसे हिंदू स्थलों का नाम परिवर्तन किया और भाग्यनगर का नाम उन्होंने हैदराबाद लगाया। तो बेशक जो पब्लिक चाहती है वही भारतीय जनता पार्टी करती है। तो जनता डिमांड है कि हमें हमारा पुराना नाम चाहिए, हमें भाग्यलक्ष्मी माता जी का नाम चाहिए, हमें भाग्यनगर चाहिए। तो बस वही डिमांड को हम लोग पब्लिक में रेस कर रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आई तेलंगाना में तो सबसे पहला काम हम वो करेंगे। केसीआर ने जो है माइनॉरिटीज के लिए आईटी पार्क बनाने तक का घोषणा जो किया है, अपीसमेंट देखते हैं या वेलफेयर देखते हैं इसे? ये सिर्फ लालच है। ये मुख्यमंत्री केसीआर माइनॉरिटी को हर बार कुछ ना कुछ ललीपॉप बताकर उनका वोट खींचते हैं। और सबसे बड़े ये जो डुप्लीकेट जो 2 मुस्लिम है, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, केसीआर की हाथ की कठपुतली बनी है। आज अकबरुद्दीन विधानसभा में कहता है कि मुसलमानों के वेलफेयर के लिए तेलंगाना राज्य की सरकार
2200 करोड़ रुपए दे रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो पैसा कहां जा रहा है? क्यों पुराना शहर डेवलपमेंट नहीं हो रहा? क्यों वहां का युवा डेवलपमेंट नहीं हो रहा? क्यों वहां के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही? क्यों अनडेवलपमेंट है ओल्ड सिटी? मैं आज पूछना चाह रहा हूं। सिर्फ ये लोग मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर सिर्फ वोट हासिल करते हैं। कभी योगी का चेहरा बताते हैं, कभी मोदी का चेहरा बताते हैं, कभी मेरा चेहरा बताकर मुसलमानों को डराकर बीआरएस को ये लोग फायदा पहुंचाते हैं। एक आखिरी सवाल, कल प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हैदराबाद में रोड शो करे, किस तरह की तैयारी रहेगी? बहुत ही धूमधाम से तैयारी है। लगभग मैं समझता हूँ 40 किलोमीटर का उनका यात्रा है, ऐसा मैंने सुना है। और एंडिंग मेरी ही विधानसभा में सौभाग्य है मेरा, और हमारी तैयारी बहुत जोर शोर से है। मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में लोग रोड पर आएंगे और मोदी जी का भव्य रूप से स्वागत करेंगे। Well, there are lots more political controversies doing the rounds in the poll-bound state. We'll be right back with the same. Stay tuned. Welcome back. As Telangana Assembly battle inches closer, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi has also hit out at both the BJP and the Congress, slamming the BJP over its Bhagyanagar promise. Owaisi says that changing names will not help the BJP win the hearts of the people, and it can only dream of coming into power in the state. Owaisi also hit out at the Congress party and Rahul Gandhi over its B-team charge on the AIMIM. Listen in. तेलंगाना में चुनाव प्रचार थमने को है और तेलंगाना में किस तरह की जो एक तरह की हवा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। सबसे पहला सवाल ये कि आप लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, किस तरह का माहौल जो है अगर हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना की बात करें तो लग रहा है? देखिए, चुनाव हो रहे हैं, हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स जो उन्नाव खड़ा किए गए उनके लिए हम सब लोग पार्टी के जिम्मेदार, पार्टी के मेंबर्स सब लोग मेहनत कर रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह हमारी जो 7 विधानसभा की सीटें थी हम रिटेन करेंगे और जो एडिशनल 2 लड़ रहे हैं वहां भी हमको कामयाबी मिलेगी। सर, लगातार जो है बीजेपी केसीआर पर लगातार हमला कर रही है कि जो सरकार है वो फार्म हाउस से चल रही है, तांत्रिकों के भरोसे चल रही है। इसे क्योंकि आप लगातार जो मामू के टुवर्ड्स बोलते भी रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? अब मोदी जी तो इतना सफर करते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो शायद जैसा वो सरकार चला रहे हैं वैसा ही शायद चला रहे होंगे मामू भाई। आप तो हर अब जो चुनाव रहा मोदी जी चले जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वैसा ही चला रहे होंगे ये भी मामू भी। सर, आप ही के इलाके में जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रोड शो करते हैं और हैदराबाद को जो भाग्यनगर में बदलने की बात लगातार वे करते आए, चाहे वो जीएचएमसी चुनाव हो या इस बार का हो, किस तरह से देखते हैं इसे आप? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी वो कुछ भी कर लें, घर घर जाएं, प्रचार कर लें, बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है। ये नफरत की राजनीति करते हैं और इसीलिए हर जगह जाते हैं, कहते हैं नाम बदल देंगे, नाम बदल देंगे, वो एनकाउंटर हमने करवा दिया, हमने ये करवा दिया। आपने कौन सा कंस्ट्रक्टिव काम करवाया? देश की इकोनॉमी कमज़ोर हो चुकी है, देश में कीमतें आसमानों को छू रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें कमी नहीं हो रही हैं, नौजवान बेरोजगार है, इस पर कोई बात ही नहीं करते। आपसे नाम बदल देंगे, ये क्या बात है? सर, तेलंगाना के चुनाव की अगर बात करें तो पूरा बी टीम के इर्द गिर्द ही रहा है। लगातार राहुल गांधी जो आपको प्रधानमंत्री मोदी के यार बता रहे हैं, इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं राहुल गांधी को कहना चाहूँगा कि आखिर आपको क्या डर है जो आप कभी अपनी जबान से आर्टिकल 370 के बारे में अभी तक नहीं बोले? आप क्या डरते हैं मोदी जी से, या फिर आप ये डरते हैं कि आपका हिंदुत्व का चेहरा बेनिकाब हो जाएगा?